प्लांट किंगडम के अंदर हमारा जो आज का पार्ट है वो है जिम्नोस्पर्म्स। Gymnosperms, as the name indicates, gymno means naked and sperms means seeds. That is the plants which produce naked seeds. Naked seeds का क्या मीनिंग है? Naked का मतलब फल नहीं है। फल क्यों नहीं है? क्योंकि ओवरी नहीं है। And these seeds are produced and lying exposed directly ऑन दी मेगास्पोरोफिल्स। अब ये सर मेगास्पोरोफिल्स क्या है? थोड़ा सा वेट करो, सारा क्लियर हो जाएगा। पहले आप ये पॉइंट देखो कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड दे प्रोड्यूस नेकेड सीड्स एंड द सीड इज नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट, दे आर इन द फॉर्म ऑफ टॉल वुडी ट्रीज, दे आर मीडियम साइज आल्सो and the largest, that you can say the tallest gymnosperm is Sequoia sempervirens. Sequoia redwood tree। और इतना इंपॉर्टेंट है ये कि नीट में आता है कि टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म सिक्वेया और उसके बाद स्मॉलेस्ट अबाउट 25 सेंटीमीटर, दैट इज जैमिया पिग्मिया। अभी तक हमने 2 पॉइंट लर्न किए हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स आर दी प्लांट्स विच प्रोड्यूस नेकेड सीड्स। नेकेड मीन्स दे आर लाइंग डायरेक्टली एक्सपोज्ड एंड देयर इज नो फ्रूट। व्हाई देयर इज नो फ्रूट? बिकॉज देयर इज नो ओवरी। एंड सेकेंड पॉइंट हमने किया है कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ very tall trees, they can be medium size also, and the tallest gymnosperm is Sequoia sempervirens, and the smallest of course exception, that is Jaimia pygmea. The main plant is sporophyte, spore producing, and it is diploid. It is differentiated into true roots, stem and leaves. It is having vascular tissues like that of the pteridophytes. Roots, there is a tap root system. What? Along with the tap root, there are present some in certain plants. For example, in Pinus, there are present mycorrhizal roots. Mycorrhizal roots are the special branches arising from the tap roots, horizontal branches, and they are associated with the fungal hyphae. There is an association with the fungal hyphae and the roots of the plant. The hyphae, they get shelter and food, of course to a limited extent, and they help the plant for absorption of moisture, phosphates, and also to fight against certain microbes, and the association between them is called as mycorrhiza. So जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, पाइनस का रेफरेंस आएगा, पाइनस प्लांट मोस्ट कॉमन अमंग जिम्नोस्पर्म्स, तो आपने उसकी रूट्स के अंदर माइकोरहाइजा स्टडी करनी है, एसोसिएशन, सिम्बियोटिक एसोसिएशन, एंड द रूट्स आर कॉल्ड माइकोरहाइजल रूट्स। और जिम्नोस्पर्म का एक और मेंबर आपने स्टडी करना है, दैट इज साइकस। साइकस के अंदर होती हैं कोरलोइड रूट्स। कोरलोइड रूट्स, they are negatively geotropic, special type of roots, and they are associated with blue green algae which are nitrogen fixing. Then about the stem, stem can be unbranched as in case of cycas, or it can be branched as in the case of Pinus and Citrus. And as far as leaves are concerned, the leaves may be simple, they may be pinnately compound, and the pinnately compound leaves are present in cycas,
and the simple leaves, they are reduced in the form of needles. They are present in pinus. Something special about the leaves. जो ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ये ग्रो ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स, स्लोप पे उगते हैं और वाटर जो है वो रन ऑफ हो जाता है क्विकली, और सर्दी के अंदर सॉइल का टेम्परेचर बहुत फॉल कर जाता है, सो रूट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर, सो दे बिकम जीरिक। इनको जो वातावरण मिलता है वो खुश्क वातावरण मिलता है, एंड एज सच pinus and the allied plants, they are xerophytic। आपको लगता होगा कि ये पहाड़ों में मिलते हैं, पानी इतना है, बारिश इतनी है, लेकिन दी स्लोप्स ऑफ हिल्स में से पानी रन ऑफ हो जाता है, फिजिकल ड्राइनेस आ जाती है, और सर्दी के अंदर जो जड़ें जो हैं वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। So due to both of these reasons, the plant is a xerophyte, and the plants, they adapt themselves in the xeric conditions by reducing their leaves in the form of needles. They have thick cuticle, they have sunken stomata, so they are well adapted to xeric conditions. As regards reproduction and life cycle, Pinus chilpine, that will be taken as a common example, and the Pinus plant is sporophyte, that is spore producing plant. Now all these seed plants, gymnosperms as well as angiosperms, all the plants, and I will stress over here that the seed plants, they produce two kinds of spores, that is, they are heterosporous, all of them. And when we are talking about the reproduction in gymnosperms, by taking Pinus as an example, we will say that it is heterosporous. Heterosporous means production of two kinds of spores. That is, the smaller spores are called microspores and megaspores. These spores are produced inside specialized structures called as cones or strobili. Cones or strobili. The cones producing the microspores are called male cones, and the cones producing the megaspores are called the female cones. Pinus plant bears both the male and the female cones. So we use the term, कौन सी टर्म यूज करेंगे इसके लिए? मोनोइशियस। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, the male cone is made up of a number of microsporophylls, and each microsporophyll bears two microsporangia, and within the microsporangia are produced microspores by meiosis. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस, और क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल तक जो प्लांट का पार्ट है, दैट इज लाइफ साइकिल है, वो है 2n फेज। जब मियोसिस हो गई तो शुरू हो गया 1n फेज। Microspores, they are the first stage of the 1n phase. अब उधर आ जाओ, फीमेल कोन। फीमेल कोन consists of a number of megasporophylls, and a megasporophyll bears, this is megasporophyll, it bears two
ovules. These ovules, what are these ovules? These ovules are megasporangia. They are lying directly on the megasporophyll. अब शुरू से ले लो. There is a plant. On the plant there is a female cone. Female cone bears megasporophylls, and on the megasporophyll are present the megasporangia or the ovules. थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखेंगे about the ovule. Ovule consists of a mass of cells called nucellus. अभी तक meiosis नहीं हुई, प्लांट 2n था, तो अभी तक सारा कुछ जो है वो 2n ही रहेगा. Ovule consists of a mass of cells called nucellus. तो nucellus के अंदर सेल भी कितने n होंगे? 2n होंगे. It is covered by this integument, one thick fleshy integument. और न्यूसेलस के अंदर से एक सेल, सिर्फ एक सेल वो डिफरेंशिएट हो जाएगा. And this cell is called as MMC, that is मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी? मियोसिस. क्या बनेंगे? 4 मेगास्पोर्स, 3 डिजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल होगा. जो फंक्शनल होगा वो यहीं पर रहेगा. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. कि मेगास्पोर इसके अंदर ही रिटेन रहेगा. किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर. ओव्यूल अटैच्ड है मेगास्पोरोफिल पे, मेगास्पोरोफिल लगी है फीमेल कोन में, फीमेल कोन लगा है प्लांट पे. तो हम कहेंगे कि ये जो मेगास्पोर है क्या, कि ये ओव्यूल के अंदर ही रिटेन रहेगा और वहीं पर जर्मिनेट करेगा और क्या बना देगा? एक मल्टी सेलुलर टिश्यू कॉल्ड फीमेल गमेटोफाइट. इससे अब ये टिश्यू बन गया, इसका नाम है फीमेल गमेटोफाइट. क्योंकि ये एक फंक्शनल मेगास्पोर से बना और फंक्शनल मेगास्पोर कितने एन था? 1n. इसका मतलब ये फीमेल गमेटोफाइट जो है दैट इज 1n. न्यूसेलस कितने n है? 2n. 2n वाले स्ट्रक्चर के अंदर 1n वाला स्ट्रक्चर. फीमेल गमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म्स के अंदर काफी अपने अंदर फूड स्टोर कर लेता है एंड इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म. इसका मतलब जो एंडोस्पर्म है दैट इज नथिंग बट द फूड स्टोरिंग फीमेल गमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म्स. और कितने एन है? 1n. और ये फीमेल गमेटोफाइट फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बियर करता है अपने अंदर एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड आर्किगोनिया. टू और मोर. अब ये है आर्किगोनिया. वेरी रिड्यूस स्ट्रक्चर. छोटी सी नेक, नेक के अंदर कोई नेक कैनाल सेल नहीं और एम्बेडेड दिस पार्ट इज वेंटर. वेंटर कंटेज 1 एग सेल. दिस इज एग सेल. दिस इज एग सेल. तो देखने वाली बात यह है कि जो फीमेल गमेटोफाइट है वो ओव्यूल के अंदर बनता है
और वहीं पे वो रिटेन होता है। इट इज नॉट हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस लाइक दैट ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स। सो ये मेजर डिफरेंस आ गया क्या, कि फीमेल गमेटोफाइट को वो अपने ओव्यूल के अंदर रखते हैं और ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं है, वो बीज नहीं बना सके। और उधर मेल वाले पार्ट में हमने किया था कि माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस और वहां से बनते हैं माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर भी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही रहेंगे कुछ देर के लिए, वहां रहेंगे वो। दे विल पास देयर लाइफ ऑन दी स्पोरोफाइट, दे डू नॉट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ये आता है एग्जाम में पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, दो तरह के स्पोर बनाए मेन प्लांट ने। प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बाय मेयोसिस एंड मेगास्पोर ओव्यूल के अंदर बाय मेयोसिस बनता है। ठीक है, रिवीजन भी हो रही है आपकी। अब मेगास्पोर जर्मिनेट कर गया, उसने बना दिया फीमेल गमेटोफाइट। फीमेल गमेटोफाइट ने फूड भी स्टोर कर लिया, इट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। और फीमेल गमेटोफाइट ने फीमेल सेक्स ऑर्गन बेयर कर लिया आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के अंदर है एग सेल, रिड्यूस्ड आर्किगोनिया, रिड्यूस्ड नेक। अब फिर क्या होगा, जब मेल कोन में से, ये मेल कोन है, ये देखो येलो पाउडर, येलो पाउडर। मेल कोन में जब माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाएंगे, पोलन ग्रेन बन जाएगा, तब ये रिलीज आउट हो जाएंगे। और पोलन ग्रेन्स क्या हैं, विंग्ड हैं। इनके एक पोलन का एक कोट होता है जिसके अंदर एक इनर इंटाइन होती है, बाहर एक्साइन होती है, और एक्साइन जो है वो साइड में विंग बनाती है। और ये विंग्ड पोलन ग्रेन इज ए मेल गमेटोफाइट। अब ये रिलीज आउट हो गया। उधर फीमेल के अंदर, ओव्यूल के अंदर क्या बन गया, फीमेल गमेटोफाइट कंटेनिंग द एग। दिस मेल गमेटोफाइट इज फ्यू सेल्ड माइक्रोस्कोपिक reduced structure and is carried directly to the ovule by wind. It has wind pollination, anemophily, and that is exclusive character of gymnosperms. एंजियोस्पर्म में आगे जाकर देखेंगे कि इंसेक्ट द्वारा पोलिनेशन होती है, तो यहां ये इतना डेवलप नहीं कर पाए, इनकी एनिमोफिली होती है। और अल्टीमेटली पोलन ग्रेन जो है दैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द फीमेल कोन एंड देन अल्टीमेटली इट एंटर्स इनटू द ओव्यूल, डायरेक्ट पोलिनेशन। कोई स्टिग्मा स्टिग्मा नहीं है यहां पर, बेचारे हैं प्रिमिटिव हैं। और वहां पर ओव्यूल के अंदर फीमेल के घर में चले गए, वहां जाकर क्या करेंगे, कुछ देर के लिए नाश्ता पानी करेंगे, न्यूट्रिशन मिलेगी वहां से। फिर पोलन ग्रेन जो है वो ट्यूब्स बनाएगा, और एक पोलन ग्रेन से एक ट्यूब बनेगी, और एक ट्यूब के अंदर दो मेल गमीट बनेंगे। दीज मेल गमीट्स आर नॉन मोटाइल, दे डू नॉट नीड वाटर फॉर द ट्रांसफर, they are transferred to the female by the pollen tube, and this is called siphonogamy. Siphonogamy is a characteristic feature of the seed plants. दो मेल गमीट्स में से एक फंक्शनल होगा, and it will, the pollen tube will
reach near the mouth of the archegonium here, यहाँ पर ये जर्मिनेट करता करता यहाँ ट्यूब पहुंच जाएगी, and then there it will release the functional male gamete, and the male gamete will fuse with the egg to form the zygote. zygote से क्या बनेगी? Embryo. The ovule will mature into the seed, and within the seed is present embryo. But कहाँ है fruit? There is no fruit. कोन की एक्सिस एक्सपैंड हो जाएगी, और जब ये सीड मैच्योर हो गए, दे विल बी डिस्पर्स्ड अवे. और इंटरेस्टिंगली द सीड ऑफ पाइनस इज आल्सो विंग्ड, और वो उसको डिस्पर्सल में हेल्प करेगा. द सीड ऑन फॉलिंग ओवर द सुटेबल प्लेस जर्मिनेट्स टू फॉर्म ए न्यू प्लांट. बहुत आसान है रिप्रोडक्शन. थोड़ा सा सर समरी कर दो. समरी ये है भैया, ये प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट है, स्पोर पैदा करता है. इसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो मेल कोन में और फीमेल कोन में पैदा होंगे. मेल कोन में माइक्रोस्पोर पैदा होंगे और फीमेल कोन में मेगास्पोर पैदा होंगे. एक्चुअली क्या होता है कि मेल कोन के ऊपर लगी होती हैं, या यूं कहो कि मेल कोन बनी होती है माइक्रोस्पोरोफिल की. माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल में मेयोसिस. क्या बन गए? माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर वहां रहेंगे, ओके, और वो डेवलप करेंगे इनटू पोलन ग्रेन. क्योंकि मेयोसिस के बाद बने हैं 1n बोलो, और इसको मेल गमीटोफाइट बोलो. बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक हो गया यहाँ तक? अब लेते हैं मेगास्पोर. मेगास्पोर बनेंगे फीमेल कोन में. फीमेल कोन कंसिस्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल्स. मेगास्पोरोफिल के ऊपर लगे हैं मेगास्पोरेंजिया. मेगास्पोरेंजिया क्या बोलते हैं? ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर क्या है? एक मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मेयोसिस हो जाती है, 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, 3 मर जाते हैं, 1 रह जाता है. वो जो रह जाता है वो परमानेंटली वहीं रहता है, और क्या बनाता है? फीमेल गमीटोफाइट. फीमेल गमीटोफाइट इज मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर. इट इज परमानेंटली रिटेन देयर, और फूड को भी स्टोर करती है. एंडोस्पर्म का पॉइंट आ गया. एंड इट बियर द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एज आर्किगोनिया. आर्किगोनिया रिड्यूस्ड, एंड ईच आर्किगोनियम कंटेन्स 1 एग. उसके बाद पोलिनेशन बाय विंड. फिर पोलन ग्रेन्स डायरेक्टली रीच द ओव्यूल्स, and they germinate there to produce the pollen tube, and the pollen tube carries a functional male gamete to the archegonium. Then fertilization, and after fertilization zygote is formed, and zygote develops into embryo, and the ovule changes into the seed. In Pinus it will develop a wing, and it can be dispersed away. When the seed germinates, it produces a new plant. Life cycle. Naturally, after learning briefly about the reproduction in the gymnosperms, we would like to know what type of life cycle they are having. Their life cycle, of course, is called diplontic. Why it is called diplontic? सर आपने तो बताया था कि इसके अंदर 2 फेजेज हैं. पहले मेयोसिस जहाँ तक नहीं होती वहाँ पर स्पोरोफाइट, जो मेयोसिस हो जाती है तो गमीटोफाइट. तो फिर आप इसको डिप्लॉन्टिक क्यों बोलते हो? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्पोरोफाइट है वो रिप्रेजेंट करता है मेन फेज, और जो गमीटोफिटिक जनरेशन है वो है वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक, फ्यू सेल्ड, और स्पोरोफाइट के ऊपर ही डिपेंड करती है. इसलिए क्योंकि डोमिनेटिंग जो है सारा कुछ डिप्लॉयड है, इसलिए हम बोलेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. एंड द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको एंजियोस्पर्म में भी
कहना होगा। तो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनके अंदर आपने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहना है, क्योंकि इनका जो गेमेटोफाइट है उसकी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई वेरी फ्यू सेल्ड स्मॉल माइक्रोस्कोपिक जनरेशन, जो स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहती है और उसी पे वो डिपेंड करती है, उसी पे अपना टाइम पास करती है, थोड़े पीरियड के लिए होती है। सो यू अंडरस्टैंड लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस इज डिप्लॉन्टिक। मार्क करके रखो इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ब्रीफली थोड़ा सा लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। वैसे जिम्नोस्पर्म मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन क्यों नहीं है मुश्किल? ये इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ उसके कैरेक्टर स्टडी करने, आउटलाइन स्टडी करनी है। सो ब्रीफली करेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। लिविंग जिम्नोस्पर्म्स 4 ग्रुप्स में फॉल करते हैं। पहला है साइकेडोप्सिडा और इसकी एग्जांपल है साइकास। साइकस को हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं क्योंकि दिस इज द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स ग्रुप। साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कागज में बाकी रहे, तांते लागी बार। थोड़ा सा और लिखा है, अदरवाइज ये एंडेंजर्ड प्लांट है, इसको हम पांडा ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। अनब्रांच्ड एक्सिस होती है, उसके ऊपर क्राउन ऑफ पाम लाइक लीव्स होता है, लीव्स पिनेटली कंपाउंड है। इसके अंदर मेल एंड फीमेल अलग अलग हैं। सो साइकास पर्टिकुलरली आपको आएगा डायोशियस। और कॉर्लेट रूट्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। और पॉइंट, इट इज हैविंग द लार्जेस्ट ओव्यूल्स, लार्जेस्ट एग्स, लार्जेस्ट स्पर्म्स इन द प्लांट किंगडम। एक प्रिमिटिव करेक्टर है इसका, और दैट इज इट्स स्पर्म्स आर टॉप शेप्ड एंड मल्टीसिलिएटेड, ए करेक्टर रिजेंबलिंग द फर्न्स। लोअर के साथ करेक्टर मिल गया, इसको प्रिमिटिव करेक्टर बोलते हैं। और साइकस में एक पॉइंट और नोट करेंगे, दैट इज इसके अंदर फ्लैशी बड्स होते हैं कॉल्ड एज बुलबिल्स, विच हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सिर्फ पॉइंट्स लो प्लीज़, ज़्यादा साइकस के चक्कर में मत पड़ो। ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड लेते हैं, दैट इज जिंगोप्सिडा। जिंगोप्सिडा के अंदर जिंगो वाइलोबा, मेडन हेयर ट्री। ये प्लांट पहले एंडेंजर्ड था, लेकिन एक्सिटू कल्टीवेशन के कारण, दैट इज बाई ग्रोइंग इट इन द बोटेनिकल गार्डन्स, अब ये एंडेंजर्ड लिस्ट से बाहर हो गया। नेक्स्ट आता है कोनीफेरोफाइटा। कोनीफेरोफाइटा प्लांट्स आर टॉल, पिरामिड लाइक, लोअर ब्रांचेस बड़ी हैं, ऊपर वाली ब्रांचेस छोटी हैं, एंड इट गिव्स ए पिरामिड लाइक शेप। सिड्रस, पाइनस, when you go to the hills you find growing it the slopes of the hills. सिट्रस उससे भी ज्यादा सुंदर है। अब मनाली जाओ, देखो वहां सिट्रस के प्लांट्स। देवदार, देवताओं का द्वार, दैट इज जहां लगे हैं वहां इतना सुकून है, इतनी शांति है, और लगता है कि सुबह सुबह वहां से देवता लोग जाते हैं। इसका नाम है देवदार, सिट्रस देवदारा। आरोकेलिया, दैट इज क्रिसमस ट्री, को मंकी पजल भी बोलते हैं, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। सारे आप कोनीफेरोफाइटा में पढ़ेंगे। और इनके अंदर एवरग्रीन ट्रीज आर एवरग्रीन। क्यों? इनकी लीव जो होती हैं वो परसिस्टेंट होती हैं, कि छोटे छोटे होते हैं ड्वार्फ शूट्स, वो फॉल करते हैं। बाय द टाइम जब वो फॉल करते हैं नए और बन जाते हैं। सो प्लांट इज एवरग्रीन।
अब फोर्थ ग्रुप है नीटोप्सिडा। जब नीटोप्सिडा की बात आती है एकदम 3 इकट्ठे, हालांकि हैं अलग अलग ये, लेकिन ग्रुप इनका इकट्ठा हो गया। तीनों के करैक्टर अलग अलग हैं। सर कौन है? वो है नीटम, इफिड्रा एंड वेलविसिया। नीटम, इफिड्रा एंड वेलविसिया, ये तीनों के अंदर बढ़िया बात ये है कि तीनों के अंदर जो स्पोरोफिल्स हैं वो कॉम्पैक्टली रेन है इन ए फ्लावर लाइक मैनर, सो दे आर क्लोज टू द एंजियोस्पर्म्स। सबसे एडवांस्ड ग्रुप अमंग द जिम्नोस्पर्म्स। और एक बात जो आप नोट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो नोट में की नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज होगी कि जो जाइलम टिश्यू होती है उसके अंदर ट्रकीड, वेसल्स, समझ गए, ये दो होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स होती हैं 95% तक और ट्रकीड 5% होते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स नहीं होती। सर यो क्यों नहीं सीधा बताते पॉइंट हमारे को, हम याद कर लेंगे। वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। भैया बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तीन, दैट इज नीटम, इफिड्रा एंड वेलविसिया, इनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और पहला पॉइंट क्या बताया था कि देयर स्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड इन ए फ्लावर लाइक मैनर। सो ये जो ग्रुप है नीटोप्सिडा, इसके अंदर 3 रिप्रेजेंटेटिव एंड इट इज क्लोज टू द एंजियोस्पर्म्स। लास्ट में चलते चलते थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी मेंशन कर देते हैं। क्या है? ऑर्नामेंटल, थूजा, पाइनस, साइकास, आरोकेरिया, ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। गार्डन्स में आपको अक्सर मिल जाएंगे। मैंने भी अपने गार्डन के अंदर ये पाइनस का प्लांट जो है वो लगाया हुआ है, जो कि मैं थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। कहेंगे सर वो तो ट्री होता है, आप यहाँ से कहाँ से ले आए? वो अरे भाई ट्री नहीं, ये थोड़ी ब्रांच लेके आया हूँ मैं, ठीक है, तो याद कर लोगे। उसके बाद वुड, पाइनस के अंदर वुड होती है। पाइनस का जो मेन ट्रंक है उससे टिम्बर तैयार होता है, रेलवे स्लीपर वगैरह बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट सिड्रस के बारे में भी आप कर लेना। सिड्रस की लकड़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिड्रस देवदारा, देवदार की लकड़ी। उसके बाद इफिड्रा, यहाँ से मेडिसिन, इफिड्रीन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसको ठीक करने के काम आती है। पाइनस के प्लांट के अंदर से हमें डार्क ब्राउन सब्सटेंस मिलता है कॉल्ड एज रेजिन। रेजिन को डिस्टिलेट करके हम तारपीन का तेल बनाते हैं, वार्निश बनाते हैं, और सारी ये पेंट इंडस्ट्री के अंदर काम आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा एडिबल सीड्स, खाने वाले बीज। पाइनस जिराल्डियाना कश्मीर के अंदर इसको ग्रो करते हैं, हाइट्स के अंदर थोड़ा। इसके बीज को बोलते हैं न्यूजा। उसके अंदर बीज का कोट रिमूव कर दो, अंदर से एंडोस्पर्म मिलेगी, वो खाने के काम आती है सर्दियों के दिनों में। कॉस्टली है काफी। नेक्स्ट आता है नीडल्स फॉर पैकिंग। ये नीडल्स ऐसे पैकिंग मटेरियल के लिए काम आती हैं। यू कैन वेल विजुअलाइज। नीटम, नीटम में से तेल निकलता है जो मसाज करने के काम आता है, रोमेटिक पेन। ओके, उसके बाद थोड़ा सा और कर लो आप। बार्क ऑफ टेक्सस, टेक्सस बैकेटा, ये बार्क से एक दवाई बनती है कॉल्ड एज टेक्सॉल।
एंड इट इज़ एंटी कैंसरस ड्रग। सो इसके साथ जिम्नोस्पर्म्स का काउंट जो है वो ओवर हो जाएगा। आपने देखना है कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, इनके वेजिटेटिव करेक्टर क्या हैं, रिप्रोडक्टिव करेक्टर क्या हैं। मेन ये है कि टेरिडोफाइटा के बाद ये ग्रुप आता है जिसके अंदर ट्रू सीड बना है। ट्रू सीड तभी बन पाएगा यदि ये फीमेल गेमेटोफाइट को अपने ओव्यूल के मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रखेंगे और फर्टिलाइजेशन भी वहीं होगी और वहाँ जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगी, तब जाकर ये जो मेगास्पोरेंजियम है बीज बनेगा और फिर बाद में ये डिस्पर्स होके गिर जाएगा और न्यू प्लांट बन जाएगा। लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टे कर लोगे। सो हैव ए नाइस डे। थैंक यू।